Good morning to all of you. This is chapter number 2 of our NCERT, that is polynomials. First, polynomials start करने से पहले हम लोगों ने इसको earlier classes में भी पढ़ा है, like algebraic expression in the class 8 and then after polynomials in the class 9. In this chapter, we have dealt with variables, constants and their combinations. First of all, algebraic expression. What is an algebraic expression? Algebraic expression is made up of variables and constant along with mathematical operators. For example, 2xy. 2xy is algebraic expression. 2 is constant. One variable is x. Another variable is y. We take another examples of algebraic expression, that is minus 3x square y plus 4xy plus 5x minus 6. This is the sum of four terms. First term is minus 3x square y, second term is 4xy, third term is 5x and last term is 6. तो algebraic expression जो हमारे पास होगा वो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को जब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ डील करेंगे हमारे पास algebraic expression बनता है. algebraic expression में जो exponents होते हैं they can be rational. In algebraic expression the exponent of the variables can be rational quantities. The terms and the coefficients. Terms. A term is a product of variables and constant. As earlier I told you, a term can be algebraic expression itself, like 2xy. We have discussed the term 2xy. So 2xy is already an algebraic expression. For example, a term minus 3 is just a constant. Minus 2x is a product of a constant number 2 and a variable x. Minus 4xy, which is the product of constant 4, variables x and y. The constant in each term is referred as coefficients. Coefficient, that what does it mean? Minus 5x square y. If someone is asked what is the coefficient of x square y, we have to write minus 5. Minus 5 is the coefficient of x square y. The numerical coefficient only. The coefficient of xy in minus 4xy is minus 4. This is the product of 5 x into x into y. So the constant in each term is referred as a coefficient. Next come to our topic, that is polynomial. An algebraic expression can have exponents that are rational numbers. However, a polynomial is algebraic expression in which the exponent of any variable is a whole number. I repeat my line. In algebraic expression, the exponent are rational numbers, but in the polynomial, the exponent should be a whole number. Like, take a simple example, 5x cube plus 3x plus 1. This is the example of polynomial. This is also algebraic expression because this is the sum. यहाँ पे 3 terms हम लोगों ने use किए हुए. 3 terms जो हमारे पास हैं, इनमें अलग अलग हमारे पास variables भी हैं और constants भी है और mathematical operator हमने यहाँ पे addition use किया हुआ है. This is also algebraic expression. लेकिन अगर हम इसको पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल है बिकॉज यहाँ सारे डिग्रीज जो है, जो सारे एक्सपोनेंट है वो कैसे है, हमारे पास एक होल नंबर क्वांटिटी है. 1 can be written 1 into x to raise to the power 0 and 0 is the whole number. Next example, 2x plus 3 under root x is an algebraic expression. It is written in the two terms. यहाँ पे दो terms लिखे हुए 2x and 3 root x. The first term it's a polynomial. अगर इसको हम बोलते तो polynomial हो सकता था, लेकिन if we take the second term, here the exponent is under root x, which is 1 by 2, which is 1 by 2, and 1 by 2 is a rational number. It is not a whole number, so it is pure algebraic expression, not a polynomial. इससे हमें जो चीज मिली कि सारे के सारे polynomials जो होते हैं, they are the algebraic expression. लेकिन वो सारे algebraic expression polynomial नहीं होंगे जिनके पावर्स रेशनल होंगे, मतलब होल नंबर्स के अलावा. होल नंबर्स छोड़ दीजिए, रेशनल में होल नंबर ऐड आते हैं, तो वो सारे के सारे नंबर्स जो रेशनल में यानी p by q के फॉर्मेट में लिखे जाएंगे लेकिन होल नंबर्स ना हो, वो सारे के सारे algebraic expression. और जितने पावर एक्सपोनेंट जितने आपके हैं वो सारे के सारे अगर होल नंबर्स हैं तो वो सारे आपके पास पॉलिनोमियल होंगे. नाउ वी टेक डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. For a polynomial in one variable, the highest exponent of the variable of a polynomial is called degree of the polynomial. For take example, the degree of polynomial x square plus 2x plus 3. यहाँ पे जो higher exponent है that is 2. You can see this. The higher exponent is x square में power degree कितनी है 2.
तो एक्सप्रेशन जो हमारे पास डिग्री रहेगी वो उसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2. द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स दैट इज 5 minus 2. और भी आपके पास नंबर्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिल सकते हैं 1/3 समथिंग एल्स, तो उनकी डिग्री हमेशा कितनी होती है 0. And the degree of zero polynomial is not defined. Why it is not defined? Because 0 can be written as 0 into x cubed plus 0 into x square plus 0 into x plus 0. That is 0 polynomial. If you want to write 0 polynomial in degree of exponent order of 10, so 0 into x to the raised to the power 10 plus 0 into x raised to the power 9 and so on up to 0. The degree of 0 polynomial is not defined. Now come to types of polynomials. They are polynomials classified on the basis of number of terms and the degree of polynomials. हम polynomial को दो टाइप में, दो क्राइटेरिया में डिवाइड कर सकते हैं उनके टाइप्स को. पहला नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे और दूसरा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे. लेट डिस्कस बोथ द टाइप्स. Types of polynomials on the basis of number of terms. Number of terms we have already discussed कि किसी भी polynomial में जो mathematical operator है addition subtraction उनसे आपके पास terms बनते हैं. Monomial. A polynomial is just one term like 2x, 6x square, 9xy, something like all those terms which can be written in the product of 2 variable, 3 variable or as so many exponents. But single term. Just one term. It is called monomial. Binomial. Bi it means two or this is a polynomial. So a polynomial with two terms is called binomial. Binomial आपके पास 4x square plus x and 5x plus 4, 6x minus 3 and so on. Trinomial. Tri it means 3. Nomial. Tri plus polynomial के combination में है ये. A polynomial with 3 terms is example of x square plus 3x plus 4 and so many terms. These are which have contained 3 terms is called trinomial. 3 or more terms के लिए हम लोग word polynomial use करेंगे. Next, types of polynomial on basis of degree. Degree we have already discussed कि जो उसका higher exponent होता है, जो कुछ भी होगा उसको हम क्या बोलते हैं degree. अगर degree is 1, if the degree all those polynomial whose degree is 1 is called linear polynomial. तो linear polynomial 2x plus 3 it can be a monomial और binomial. आपके पास monomial भी हो सकता है या binomial भी हो, उसकी डिग्री सिंगल टर्म की भी हम 100 पावर लगा सकते हैं, लेकिन अगर कितना बड़ा भी आपके पास पॉलिनोमियल लिखा है उसका हायर एक्सपोनेंट जो है वो 1 है तो इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर में एक लाइन छुपा हुआ है. इफ वी वांट टू ड्रॉ दीज पॉलिनोमियल्स ऑन द ग्राफ पेपर तो ये हमेशा किससे रिप्रेजेंट होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन से जिनकी डिग्री 1 होती है. ये हम लोग ऑलरेडी इसको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल से क्लास ऑफ 9th में और लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्लास 10th में डिस्कस करेंगे. तो 2x plus 1 यहाँ x का एक्सपोनेंट कितना है 1, तो ये हमारे पास क्या है लीनियर पॉलिनोमियल. A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. For example, 3x square plus 8x plus 5 is a quadratic polynomial because if we want to write the following given polynomial in descending order, here we get the highest exponent of the x is 2. यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है 2. So this is quadratic polynomial. Cubic polynomial. A polynomial of degree 3 is called cubic polynomial. For example, 2x cube plus 5x square plus 9x plus 15 is a cubic polynomial. As seen, the highest exponent is 3, therefore it is cubic. Now come to graphical representations. Representing equations on a graph. An equation can be represented as a graph on the Cartesian plane where each point on the graph represents the x and the y coordinates of the point. That satisfies the equation. An equation can be seen as constraint placed on the x and y coordinates of a point. And then any point that satisfies the constraint will lies on the curve. First, take example. The equation y equals to x on the graph will be a straight line. Why it is straight line? As I earlier told you, the degree of the algebraic expression, this is also a polynomial in 2 variables. ये आप इसको polynomial बोलेंगे तो यहाँ 2 variable use किए हैं. Algebraic expression भी है आपके पास. तो y equals to x on the graph will be a straight line that joins all the points which have their coordinates equal to y. अगर आप x की वैल्यू 1 रखते you will get corresponding value of y is 1.
if 1, 1, 2, 2, 3, 3 and so on. Here we get the graph. Similarly अगर आप 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 and so many, तो लाइन आपका इस तरह से आएगा, और ये आपके पास डिग्री इसकी 1 थी, तो it is always a straight line. Next, visualization of a polynomial. Geometrical representation of linear polynomial. The graph of a linear polynomial is always a straight line. Its cos the x-axis is exactly 1 point. कि linear polynomial है तो x-axis को हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करेगा अगर y equals to function of x. Next, visualization of quadratic polynomial. Geometrical representation of a quadratic polynomial. The graph of a quadratic polynomial is parabola. Parabola is shape of deep U. एक deep U जो होगा, ये parabola हमेशा एक deep U shape होता है. It's look like U, which either opens upwards or downwards, open downwards, depending on the value of A in ax square plus bx plus c, where A is the coefficient of x square. If A is positive, then parabola opens upwards. अगर A की वैल्यू पॉजिटिव होगी, like greater than 0, 1, 2, 3 and so many numbers, तो ये आपके पास हमेशा upwards open होगा. If A is negative, minus 2x square, something like that, then it's open downwards. It can cut the x-axis at 0, 1 and 2 points. The graph of polynomial which cuts the x-axis in 2 points, 2 distinct points, that is minus 2 and plus 2. It is, the condition is A is greater than 0. तो ये ओपन अपवर्ड्स है, अपवर्ड्स यानी ऊपर की तरफ इसका जो एंड है वो ऊपर खुला हुआ है. नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच टचेस द एक्स एक्सिस इन 1 पॉइंट. यहाँ भी कंडीशन A इज ग्रेटर देन 0 है, इट्स ओपन अपवर्ड्स, बट एक्स एक्सिस केवल एक ही पॉइंट पे टच करता है. लास्ट ग्राफ में पैराबोला -4 + 2 दो पॉइंट पे एक्स एक्सिस कट कर रहा था, वो भी पैराबोला था, ये भी पैराबोला था. बोथ आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. ये दोनों ही आपके पास कैसे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. दोनों की कंडीशन A इज ग्रेटर देन 0 है. द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट डज नॉट टचेस द एक्स एक्सिस, ये A इज लेस देन 0. जब A की वैल्यू नेगेटिव है हमारे पास, तो ये हम ओपन डाउनवर्ड्स है और एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा या टच भी नहीं कर रहा है. तो इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें एक बात पता चली, जो पहला वाला हमारे पास पैराबोला था जिसने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया था. इट मीन अगर हम पैराबोला बनाएंगे तो उसके नंबर ऑफ जो एक्सपोनेंट्स आने जीरोस आएंगे वो कितने होंगे, 2 जीरोस. इट मीन वो 2 वैल्यूज होंगी जो इस पैराबोला को सेटिस्फाई कर रही होंगी. नेक्स्ट में जो एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पे टच कर रहा था तो उसका एक ही सोल्यूशन मिला, यानी कि उसका एक ही जीरो था. और यहाँ पे बिकॉज A इज लेस देन 0 था और यहाँ पे हमें उसका कोई भी जीरो नहीं मिला, तो यहाँ पे इसके 0 जीरोस हैं, एक भी जीरो नहीं मिला हमें. नेक्स्ट कम टू जीरोस. ये हम जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोल रहे हैं क्या होता है. जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल दैट इज p of x फंक्शन ऑफ x इज अ वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ px इज 0. फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उस नंबर को हम क्या कहेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. दैट इज, अगर यहाँ p ऑफ x में सपोज कोई फंक्शन दिया 2x + 3, लेकिन अगर उसमें मैं यहाँ पे कोई भी इस तरह की वैल्यू डाली जिससे वो फंक्शन का रिमाइंडर क्या हमारे पास आ गया, 0. फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर अ पॉलिनोमियल p of x equals to x² - 3x + 2. When x equals to 1, the value of px will be equals to p of 1. ये हमने क्लास 9th में भी डिस्कस किया है, फंक्शन की वैल्यू x पॉइंट पे. तो जहां जहां हमारा राइट हैंड साइड पे x है उसमें हमें 1 की वैल्यू x की प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देना है. इट बिकम्स 1² - 3 × 1 + 2. 1² is always 1, 3 × 1 is 3 and +2. 1 + 2 3, 3 - 3 = 0. तो यानी कि x = 1 डालने पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिली, 0. Since p of x is 0 at x equals to 1, इसको हम p of 1 भी कह सकते हैं. p of 1 = 0, that say 1 is the 0 of the polynomial x² - 3x + 2. What is the geometrical meaning of zeros of a polynomial? Geometrically, zeros of the polynomial at the point where its graph cuts the x-axis. If graph cuts x-axis at the single point, it means it has 1 0. 2 points, 2 zeros. इधर इस ग्राफ में हमारे पास कितने जीरोस मिल रहे हैं हमें, एक्स एक्सिस पे. इस ग्राफ ने इसको 3 पॉइंट्स पे कट किया, इट मीन इट हैज 3 जीरोस. हियर A, B, C आर correspond to zeros of the polynomial represented by the graphs.
जिससे हमें जनरलाइज रिजल्ट क्या मिला कि ग्राफ ने अगर एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया तो उसका एक जीरोस था, 2 पॉइंट पे कट किया तो उसके 2 जीरोस थे, 3 पॉइंट पे या एज ऑन सो मेनी पॉइंट्स पे अगर जितना भी कट करेगा उसके करस्पॉन्डिंग उसके नंबर ऑफ उतने ही जीरोस होंगे। तो इन जनरल अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोस। एट मोस्ट का मतलब क्यों? जैसे कि हम लोगों ने पैराबोला का देखा था, पैराबोला में a ग्रेटर देन जीरो था, लेकिन उसमें भी उसने 2 पॉइंट पे कट किया, एक पॉइंट पे कट किया, और जब लेस देन जीरो था एक भी पॉइंट पे कट नहीं किया। एट मोस्ट यानी कि अधिक से अधिक जो है, ज्यादा से ज्यादा उसके 2 जीरोस हो सकते हैं, एक भी हो सकता है या एक भी नहीं हो सकता। तो इन जनरल पॉलिनोमियल द डिग्री n हैज एट मोस्ट n जीरोस, linear polynomial has only one zero, a quadratic polynomial has at most 2 zeros, a cubic has at most 3 zeros। सबके जीरोस अलग अलग हो सकते हैं। Now the factorization of a quadratic polynomial। हम यहाँ factorization of quadratic polynomial किस लिए कर रहे हैं कि जीरोस निकालने के लिए, किसी quadratic polynomial के जीरोस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। 9th क्लास में हमने सीखा था किसी लीनियर पॉलिनोमियल के जो हम जीरोस कैलकुलेट करते थे उसको जीरोस कैलकुलेट करने के इक्वल्स टू जीरो डाल करके वो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करती है। कौन सी वैल्यू उसको सेटिस्फाई करती है कि रिमाइंडर जीरो होना चाहिए, तो हम लोगों ने रिमाइंडर जीरो करके वहां पे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी। अब यहाँ पे हम लोग जो मेथड यूज करेंगे इसमें आप कोई भी आइडेंटिटी अगर लग गई है तो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो यूज कर रहे हैं सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म हम यूज कर सकते हैं। द मिडिल टर्म इन द पॉलिनोमियल 2x² - 5x प्लस, इसको मैं एक एग्जांपल समझा रहे हैं। 2x² - 5x plus 3 is 5। मिडिल टर्म की बात कर रहे हैं, कितनी है 5। और here the coefficient of x² is 2 and the constant term is 3। तो हम इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, 2 into 3 that is 6। तो 6 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमें क्या मिल जाए 5, that is again 2 and 3। 6 के जो फैक्टर्स आते हैं वो वापस क्या आएंगे आपके पास 2 और 3। तो -5 कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ 2 and 3। कैसे लिख सकते हैं -2 plus -3। एज -2 और -3 का प्रोडक्ट कितना होता है 6। फैक्टर आपको 2 और 3 मिले थे, तो हमने -5 को कैसे एक्सप्रेस किया -2 और -3। ये इज -5x, तो इसको लिखेंगे -2x प्लस -3x। थस 2x² - 5x plus 3 is represented as 2x² - 2x - 3x plus 3। Now take the first two terms common, आप एक साथ लेंगे तो h together, तो we will get 2x as a common term। 2x यहाँ से दोनों से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x - 1 and the last two, इसमें एक -3 आप बाहर निकालेंगे, -3 is the HCF, so -3 बाहर निकालने पर अंदर क्या बचा x - 1। x - 1 x - 1 इन दोनों टर्म्स में एक कॉमन फैक्टर है, टेकिंग x - 1 as a common factor and this can be expressed as x - 1 into 2x - 3। तो ये आपके पास जो आया वो प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया। If we want to calculate the zero of the quadratic polynomial, x - 1 into 2x - 3 should be equals to 0। Either x - 1 equals to 0 or 2x - 3 equals to 0। If x - 1 equals to 0, here we get x equals to +1। If 2x - 3 equals to 0, here we get x equals to +3/2। It means the quadratic polynomial, given quadratic polynomial has two real zeros, that is x equals to 1 and 3/2। Now next topic is relation between zeros and coefficients of the polynomial। For a quadratic polynomial, if alpha and beta are the roots of a quadratic polynomial, ax² plus bx plus c, then sum of the zeros or sum of the roots is alpha plus beta is minus b upon a। b is coefficient of x और a जो होता है वो coefficient क्या है आपके पास x²। तो sum of zeros is minus times of coefficient of x upon coefficient of x²। Here it is alpha plus beta is minus b by a। दो सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर की है, तो हमने यहाँ पे दो जीरोस ही लेट की है, अल्फा एंड बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल्स टू c by a। c by a is कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। इसका इक्वेशन हम लोग देखते हैं। फाइंड the zeros of the quadratic polynomial 6x² minus 3 minus 7x and verify the relationship between the zeros and the coefficients। सबसे पहले जो हमें दिया गया पॉलिनोमियल है, ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा है। तो फर्स्ट वी हैव px इक्वल्स टू, लेट कर लिया हमने कोई पॉलिनोमियल हो, फंक्शन x है क्योंकि x वेरिएबल में है, 6x² minus 3 minus 7x। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, 6x² minus 7x minus 3।
नाउ वी आर मूव फॉर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म. अब हमें -7 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो 6 into 3 18 से मिलके बने. तो 18 के हम फैक्टर करेंगे कि 7 आ जाए, दैट इज 9 2 18. तो इस -7 बनाने के लिए हमें -9 plus 2. -7 is a combination of -9 and +2. Yes, variable is x, तो first term is -x and second one is +2x. दो फैक्टर आपको यहाँ मिल जाएंगे. तो 6x square -9x plus 2x -3. पहले दो ब्रैकेट टर्म से हमारे पास जो कॉमन HCF आ रहा है दैट इज 3x. 3x तो अंदर आपके पास बचेगा 2x minus 3. और 2x minus 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो टेक 1 एज अ कॉमन टर्म. तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x minus 3. यहाँ पे अब दो टर्म्स हैं, दोनों में कॉमन आपके पास क्या दिख रहा है, 2x minus 3. लेट्स टेक इट आउट द 2x minus 3 और ये बचा रिमेनिंग पार्ट 3x plus 1. If we want to calculate the zeros of the polynomial, for zeros of the polynomial px should be equals to 0. If px equals to 0, then 3x plus 1 and 2x minus 3 should be equals to 0. If 3x, either 3x plus 1 equals to 0, here x equals to minus 1 by 3, or 2x minus 3 equals to 0, x equals to 3 by 2. So here we get two zeros. First is minus 1 by 3 and second is 3 by 2. Now we are going to verify the relationship between zeros and the coefficients. So sum of the zeros is minus times of coefficient of x upon coefficient of x square. Sum of the zeros, that is minus 1 by 3 plus 3 by 2. और coefficients of x is minus 7 और ये आपका minus यहाँ पे minus of minus coefficient of x square in our equation is 6. So minus plus 7 upon 6. If we take the LCM of the left hand side is also a 7 by 6. So 7 by 6 equals to 7 by 6. Sum of the zero has verified. And product of zeros is equals to C by A. C by A, that is coefficient of constant term upon coefficient of x square. Product of zero, the real product of the zero is minus 1 by 3 into 3 by 2. 3 cancel out, this is minus 1 by 2. And the constant of coefficient term is minus 3 in our question. And coefficient of x square is 6. बाय स्टेप इसको आप जब सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करोगे तो ये 1/2 minus 1/2 यहाँ भी आएगा. minus 1/2 from the left hand side and minus 1/2 from the right hand side. So left hand side equals to right hand side. Thus the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial is verified. We have another question, how to prepare a quadratic polynomial if sum and product of the zeros is given to you. Question is, find a quadratic polynomial each with the given numbers as sum and product of its zeros respectively. The first case is sum is 0 and product is √5. Let's discuss the first part. Since the sum of zeros, that is alpha plus beta, is given to you 0 and the product of zeros alpha into beta equals to 5. The required quadratic polynomial is x square if you want to write the polynomial in terms of x square minus sum of zeros multiplied by x plus product of zeros. X square, sum of zeros is given to you x 0, 0 multiplied by x plus 5. This term becomes 0. X square plus 5 is your required answer. This is your required polynomial, quadratic polynomial. Next question, the B part, sum is 1 and also the product is also 1. Since the sum of the 0 alpha plus beta equals to 1, then the product of zeros alpha into beta equals to 1. And the required polynomial is again same, x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. X square minus 1x plus 1. 1 multiplied by x, that is x, so x square minus x plus 1. ये तो हमारे पास था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के. इफ हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल में डील करना हो तो उसके लिए हमारे पास कितने रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे. लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d. क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो हमें यहाँ पे इसको जो है ऑर्डर 3 का बनाना है. x क्यूब जो है वो है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब. यहाँ x क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है, वो क्यूबिक टर्म का a, क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट कितना है b, दैट इज x स्क्वायर का कोएफिशिएंट b, लीनियर का कोएफिशिएंट यानी जब x है तो उसका कोएफिशिएंट कितना है c, और कांस्टेंट टर्म दैट इज d. तो सम ऑफ द zeros, that is alpha plus beta plus gamma equals to minus b by a. Sum of product of two zeros taken together. Sum of product of two zeros taken together. Sum लेना है किसका,
दो जीरो एक साथ लिए जाए, पहली बार में अल्फा इंटू बीटा, देन आफ्टर प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू सी बाय ए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाय ए। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोग एक वर्किंग से समझ लेते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन इज वेरीफाई that the numbers given alongside of the cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relationship between zeros and the coefficient in each case. X cube minus 4x square plus 5x minus 2. और zeros जो आपको दिए गए 2, 1 and 1. First let the whole polynomial equals to px, that is polynomial in terms of x. P of x equals to x cube minus 4x square plus 5x minus 2. अब ये आपको सबसे पहले पूछा गया है कि ये आपके जीरोस हैं या नहीं है, तो वेरीफाई करना है तो हम पहले चेक करेंगे कि ये हमारे फंक्शन को जो दिया गया क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। तो फर्स्ट टेक x इक्वल्स टू 2, हमने सबसे पहले x की वैल्यू 2 डाली फंक्शन के अंदर, तो इट बिकम्स 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2, इट बिकम्स 8, 4 4 जा 16 माइनस 16, 5 2 जा 10 एंड माइनस 2। तो जब हम इनको करेंगे प्लस 18 एंड दिस इज माइनस 18, प्लस 18 माइनस 18 कैंसिल आउट, इस बिकम्स रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px, जो आपका px क्यूबिक पॉलिनोमियल था उसका 2 एक 0 है। यहाँ पे दोनों ही रूट हमारे पास 1 1 है, तो हम एक ही बार इसको लगा के देख सकते हैं, पुट करके देख सकते हैं। अगेन p ऑफ 1, 1 क्यूब माइनस 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, 1 क्यूब बिकम्स 1, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 गिव्स माइनस 4, 5 इंटू 1 प्लस 5 देन माइनस 2। एक क्वांटिटी ये प्लस की और एक ही को प्लस किया, तो 5 प्लस 1 दिस इज प्लस 6 एंड माइनस 2 माइनस 4 बिकम्स माइनस 6, प्लस 6 माइनस 6 हैज कैंसिल आउट and the remainder is 0. तो 1 is the zero of polynomial px. तो तीसरा जीरो भी जो था 1 ही था, तो आप no need to prove it. तो 2 1 1 are the zeros of polynomial. तो पहला पार्ट हमारे क्वेश्चन का हो गया। अब आपसे बोला गया also verify the relationship between zeros and the coefficient of the polynomial. First compare this equation with its standard form, ax cube plus bx square plus cx plus d. Here we get the values of a equals to 1, value of b equals to minus 4, value of c equals to plus 5 and d equals to minus 2. Since 2, 1, 1 are the zeros of the polynomial px, then let alpha equals to 2, beta equals to 1 and gamma equals to 1. It doesn't matter, आप gamma को 2 ले लीजिए, अल्फा बीटा 1 1 कर लीजिए, इससे आंसर में आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट द रिलेशन जो उन्होंने डिस्कस किया है, that is alpha plus beta plus gamma. This is sum of the zeros. Sum of the zero 2 plus 1 equals to 4. And the coefficients के साथ जो हम लोग डील करते हैं क्या होता है, minus b by a. That is minus times of coefficient of x square upon coefficient of x cube. Minus times of minus 4 upon 1. So minus of minus 4 becomes plus 1. Here it is. Minus b by a, minus of minus 4 upon 1, this is plus 4. So alpha plus beta plus gamma equals to minus b by a. Similarly, sum of the product of two zeros taken together. So alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha. Alpha has value 2, 2 into 1, beta and gamma 1 into 1, gamma and alpha 1 into 2. 2 plus 1 plus 2. This is equals to 5. And by coefficient, it is equals to c by a. Value of constant c is coefficient of x is 5 और coefficient of x cube is 1. तो 5 by 1 equals to 5. 5 equals to 5. ये आपके पास आ गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा equals to c by a. Next is product of 0. That is alpha into beta into gamma. 2 into 1 into 1. It is equals to 2 or it should be equals to minus d by a. Value of d is minus 2. तो minus of minus 2 plus 2 आ गए upon 1. तो अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। तो ये हमारे पास तीनों रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। थर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ px इज वेरीफाइड। नेक्स्ट कम टू डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल। टू डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय अनदर, द फॉलोइंग स्टेप्स आर गिवन बिलो। स्टेप नंबर 1, arrange the terms of dividend and divisor in decreasing order of their degrees. It mean अगर x की पावर 4 वाला कोई डिविडेंड है तो
पहले पावर 4, देन आफ्टर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर एक्स, फिर देन आफ्टर लास्ट में कांस्टेंट। इसी तरह से डिवाइजर को भी चेंज करना है। स्टेप नंबर 2, टू ऑब्टेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट। क्वोशंट हमें कैसे मिलेगा? डिवाइड द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द डिविडेंड बाय द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द डिवाइजर। सपोज एक्स स्क्वायर डिवाइड, इससे कोई पॉलिनोमियल शुरू होता है, वो डिवाइजर है, और को डिविडेंड की डिग्री जो है वो आपके एक्स रेज टू द पावर 4 है। तो एक्स स्क्वायर को हम किस ऑर्डर से मल्टीप्लाई करें कि वो पावर 4 बन जाए? इट मीन एक्स स्क्वायर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर टू गेट एक्स रेज टू द पावर 4। द डिवाइजर कैन कैरी आउट द डिवीजन प्रोसेस। ये आप डिवाइजर में डिविडेंड का प्रोसेस जो माइनस करके आपने देखा, एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स रेज टू द पावर 2, डिवीजन में आपके एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो वहां पे आपको क्या मिला कि मैं एक्स स्क्वायर, तो ये डिवीजन प्रोसेस से आया है। स्टेप नंबर 3, द रिमाइंडर्स फ्रॉम द प्रीवियस डिवीजन बिकम्स द डिविडेंड फॉर द नेक्स्ट स्टेप। दिस इज द लाइक फर्स्ट चैप्टर जो आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गो किया था, उसमें जो आपका डिवाइजर था उसमें रिमाइंडर, अगले केस में क्या हो जाता था, जब स्टेप नंबर 2 में रिमाइंडर आपको 0 नहीं मिलता था तो बी जो होता था वो आपके लिए डिविडेंड का काम करता, जो रिमाइंडर होता था वो डिवाइजर का काम करता था। सेम लाइक वही क्वेश्चन है आपके पास, लेकिन यहाँ पे डिविडेंड सेम रहेगा। रिमाइंडर के बाद जो आपके पास बचेगा इस बार वो आपके लिए डिविडेंड का काम करेगा। रिपीट द सेम प्रोसेस until the degree of the divisor should be greater than equals to degree of remainder. Here we take some example. Minus x cube plus 3x square minus 3x plus 5 is our dividend, and minus x square plus x minus 1 is our divisor. तो what should be multiplied to minus x square to get minus x cube? यहाँ पे डिवाइजर की डिग्री जो है वो कितनी है? 2, और यहाँ डिविडेंड की डिग्री कितनी थी? 3। साइन दोनों के सेम है, अगर सेम साइन होगा तो पॉजिटिव, अपोजिट साइन में हम क्या मार्क करेंगे? नेगेटिव, क्वोशंट नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर शुड बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू गेट एक्स क्यूब। आपने इसको कैसे कर सकते हो? इसको सिंपल डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हैं। एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया, यू विल गेट एक्स सिंगल एक्स। तो ये आपका क्वोशंट जो है वो कितना है? एक्स, बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ बोथ आर -1 एंड -1, तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कितना रहेगा? +1। अब इस x का आप इस पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, x मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स स्क्वायर इट बिकम्स माइनस एक्स क्यूब, x मल्टीप्लाइड बाय प्लस एक्स इट बिकम एक्स स्क्वायर, लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे, एंड x इंटू -1 बिकम्स -x। नाउ सबट्रैक्ट बोथ द लाइंस। ये आप सबसे पहले इसका साइन चेंज करेंगे सबट्रैक्ट करने के लिए, फिर हम ऐड करेंगे। सिंपल सबट्रैक्ट करें, या हम कह सकते हैं कि पहले लास्ट लाइन के साइन के चेंज करके हम सिंपल क्या करेंगे? एडिशन। तो माइनस एक्स क्यूब बिकम्स प्लस एक्स क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस एक्स बिकम प्लस एक्स। अब सिंपल एडिशन जब करेंगे तो न्यू साइंस इनके ये वाले हैं, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कैंसिल आउट, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बिकम्स 2x स्क्वायर, माइनस 3x प्लस x माइनस 2x, एंड प्लस 5 जो लिखा था वो एज इट इज नीचे उतार लिया। अब देखिए इसकी डिग्री यहाँ पे कितनी है? 2, और अभी भी डिग्री यहाँ पे जो न्यू डिविडेंड आ गया इसकी डिग्री अभी भी कितनी है? 2। तो डिग्री जब तक इक्वल होगी या ज्यादा बड़ी होगी हमेशा डिवीजन जाएगा, जैसे यहाँ की डिग्री कम होगी डिवीजन स्टॉप हो जाएगा। तो माइनस, और यहाँ पे क्या साइन है? प्लस, तो उससे अपोजिट साइन में हमें क्या लगाना है? माइनस। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर बनाने के लिए सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर, लेकिन कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ -1 और यहाँ पे है +2, तो वी शुड मल्टीप्लाइड बाय -2। तो -2 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे पूरे डिवाइजर को, इट बिकम्स माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस +2, फिर सबट्रैक्ट किया लास्ट को -2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, इट बिकम्स -2। नाउ ऐड, एडिशन में कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 5 माइनस 2 बिकम्स 3। तो ये आपके पास डिविडेंड था, ये डिवाइजर है, x माइनस 2 इज क्वोशंट एंड 3 इज योर रिमाइंडर। तो यहाँ पे आपका डिवीजन एल्गोरिथम जो होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, वो भी वेरीफाई हो जाएगा। Now take another example. Divide the polynomial px by the polynomial gx. Here px is a dividend and gx is your divisor. Find the quotient and remainder. Px is given to you x raised to the power 4 minus 3x square plus 4x plus 5, and gx is x square plus 1 minus x.
फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्टेप नंबर 1 था वो ये बोलता था कि सबसे पहले आप चाहे वो डिविडेंड हो या डिवाइजर हो, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट पे हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे तो डिसेंडिंग ऑर्डर है हमारे पास, देखिए x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, लेकिन यहाँ पे क्या था x² प्लस 1 देन आफ्टर माइनस x है, तो पहले इसको हम gx को रीअरेंज करके लिखेंगे x² माइनस x प्लस 1। नाउ डिवाइड x² माइनस x प्लस 1 बाय x² x रेज टू द पावर 4। हमने यहाँ पे देखिए क्यूब का टर्म नहीं है, क्यूब नहीं है तो हमने उसको 0 इंटू एक्स क्यूब लिख लिया। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम उसको आखिरी में लिख ले, और आखिरी में जब लिखते में सबट्रैक्ट करके लास्ट में ऐड करेंगे तो उस क्यूब के टर्म को हम पहले लिख लेते, नहीं था इसलिए हमने उसको यहाँ पे लिख लिया है। माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। नाउ व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई टू x² टू गेट x रेज टू द पावर 4? आंसर इज x²। तो x² इज योर क्वोशंट, x² से आप पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है x रेज टू द पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस x²। सबट्रैक्ट करेंगे इस लाइन को, साइन चेंज करेंगे, माइनस x रेज टू द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस x², और सिंपली ऐड कर देंगे तो प्लस x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4 एज कैंसिल आउट, 0 x क्यूब प्लस में है आप, और ये आपके पास प्लस के x क्यूब, तो सिंपल एक x क्यूब बचने वाले माइनस माइनस प्लस के x क्यूब, माइनस 3x² एंड माइनस x² बिकम्स माइनस 4x², बोथ हैव सेम साइन, 4x प्लस 5, इनके नीचे कोई भी टर्म नहीं था, एज इट इज इनको लिख दिया। अब न्यू डिविडेंड हमारे लिए ये है और डिवाइजर अगेन सेम है हमारे लिए, तो x क्यूब को x रेज टू द पावर 3, क्योंकि अभी यहाँ डिग्री 2 है और यहाँ डिग्री कितनी है 3, अभी ज्यादा बड़ी डिग्री है तो हम डिवाइड करेंगे, तो 2 को 3 बनाने के लिए सिंगल x से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी कोफिशिएंट प्लस 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट प्लस 1 है, इट मीन जो हमारा न्यू कोफिशिएंट का टर्म आने वाला है दैट इज प्लस x प्लस 1 इंटू x, दैट इज x। अब इस केवल x से हम पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके लिखने वाले हैं, x क्यूब x इंटू x माइनस x², और ये प्लस x, सबट्रैक्ट किया इस लाइन को तो माइनस x क्यूब प्लस x² माइनस x, दोनों को ऐड करिए तो ये कैंसिल आउट हो गए, माइनस 4x² प्लस x² बिकम्स माइनस 3x² प्लस 4x माइनस x प्लस 3x, और ये प्लस का 5 एज इट इज लिखा हुआ है हमारे पास। नाउ x² और माइनस 3x², अगेन द डिग्री इज प्लस 2 प्लस 2, डिग्री सेम है तो अभी भी डिवीजन जाएगा, यहाँ कोफिशिएंट प्लस 1 है और यहाँ कोफिशिएंट माइनस 3 है, तो इट मीन सिंपली वी शुड मल्टीप्लाई इट बाय माइनस 3 ओनली, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x² माइनस माइनस प्लस 3x एंड माइनस 3, लास्ट लाइन सबट्रैक्ट किया, प्लस 3x² माइनस 3x एंड प्लस 3, सिंपली ऐड करेंगे, ये कैंसिल आउट, ये भी आपके कैंसिल आउट होगा, 5 प्लस 3 it becomes 8, then the quotient is x² plus x minus 3 and the remainder equals to plus 8। ये आपके पास जो है वो डिवीजन एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जिनको हमको कभी कभी इन क्वेश्चंस में क्या आएगा, वेरीफाई करने के लिए भी आएगा कि पहले आपसे डिवाइड करवा लिया जाएगा, फिर बोलेंगे सिंपली वेरीफाई योर आंसर बाय डिवीजन एल्गोरिथम, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपके लिए डिविडेंड रहेगा, राइट हैंड साइड बिकम्स डिवाइजर इनटू क्वोशंट, ये दोनों प्रोडक्ट में रहेंगे, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 8, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है तो ये आपके पास रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगा। Now come to another question which is based on division algorithm only. On dividing x cube minus 3x² plus x plus by a polynomial gx, अभी आपको यहाँ पे डिविडेंड तो मेंशन है, डिवाइजर नहीं, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करें तो ये आपके लिए डिविडेंड है और gx आपके लिए क्या है, डिवाइजर। Then the quotient and the remainder will be x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively, यानी quotient कितना दिया गया x minus 2 और remainder जो हमारे लिए कितना है minus 2x plus 4, then find the gx, that is your divisor only। तो यह dividend equals to px divisor gx, quotient x minus 2 और remainder is minus 2x plus 4। By the division algorithm we have dividend equals to divisor into quotient plus remainder, डिविडेंड को हमने डिविडेंड की प्लेस पे लिख दिया, x क्यूब माइनस 3x² प्लस 2 डिवाइजर x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट दैट इज gx मल्टीप्लाइड बाय gx एंड रिमाइंडर इज माइनस 2x प्लस 4। सबसे पहले टर्म को देखिए, यहाँ पे एक अननोन क्वांटिटी को आपको x माइनस 2 से प्रोडक्ट करना है, तो हम इसको तो कुछ भी सॉल्व अभी नहीं कर पा रहे। सबसे पहले जो आपके पास ये रिमाइंडर का टर्म लिखा हुआ है इसको हम ट्रांसपोज करके कहाँ लेके जा रहे हैं, राइट हैंड साइड पे, तो माइनस 2x बिकम्स प्लस 2x
और +4 becomes -4. तो ये हमने जब सिंप्लीफाई किया तो वी हैव x क्यूब minus 3x square plus 3x. x plus 2x becomes plus 3x and plus 2 minus 4 becomes minus 2 multiplied by equals to x minus 2 multiplied by gx. अब हमें gx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो वी शुड डिवाइड बोथ द साइड्स बाय x minus 2. तो हमने x minus 2 से दोनों साइड को डिवाइड किया तो gx equals to x cube minus 3x square plus 3x minus 2 divided by x minus 2. x minus 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो x को x क्यूब से बनाने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखिए x स्क्वायर इंटू x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर सबट्रैक्ट करके ऐड करेंगे माइनस के x क्यूब है और माइनस माइनस प्लस के 2x स्क्वायर है सिंपली ऐड करने पे कैंसिल आउट माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर है माइनस x स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 2. अगेन द कोफिशिएंट ऑफ डिवाइजर इज +1 and coefficient of dividend is -1. तो ये ठीक है माइनस कोफिशिएंट -1 इधर आने वाला है एंड x यहाँ डिग्री 1 है और यहाँ अभी न्यू डिविडेंड की डिग्री जो है वो आपके पास कितनी है 2. तो यहाँ पे x को x स्क्वायर बनाने के लिए शुड मल्टीप्लाइड बाय x यानी कि सिंपली जो हमने मल्टीप्लाई किया इस बार नेक्स्ट टर्म दिस इज माइनस x को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x. फिर अगेन सबट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये आपके पास बचा प्लस x माइनस 2. अब x माइनस 2 डिग्री यहाँ दोनों की 1 1 हो चुकी है कोफिशिएंट भी 1 1 है तो केवल न्यू कोफिशिएंट का जो नया टर्म आया है वो कितना होगा +1 x माइनस 1 और 1 into 2 माइनस 2 ये आपके पास आ गया. सबट्रैक्ट करने पे ये कैंसिल आउट होकर रिमाइंडर कितना आया 0. तो gx इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. Thus the required divisor gx equals to x square minus x plus 1. इसी के सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो डिवीजन एल्गोरिथम बेस्ड भी हैं और साथ में उनमें रूट्स निकालने के लिए रहते हैं. तो ये डबल टाइप की प्रॉब्लम्स हैं इसलिए इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाते हैं. ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x to the power 4. अब यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री है वो 4 है और इसमें लिखा है ऑब्टेन ऑल द जीरो तो इट हैज एट मोस्ट 4 जीरोस. इसके जो एट मोस्ट हो सकते हैं जीरोस वो कितने हो सकते हैं 4 जीरोस हो सकते हैं. ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. इस पॉलिनोमियल के हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने हैं. इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर √5/3 एंड माइनस √5/3. दो जीरोस हमें दिए गए हैं एक +5/3 और एक -5/3. वी है 3x इक्वल्स टू हमें पूरे फंक्शन को पॉलिनोमियल को 3x इक्वल्स टू लेट कर दिया. First root which I have given to us that is alpha equals to √5/3 and beta equals to under root of minus times of √5/3. If these are the zeros of the polynomial, then अगर ये इसके zeros हैं तो x minus √5/3 और x plus √5/3 are the factors of the polynomial px. अगर ये इनके जीरोस है अगर 2 किसी फंक्शन का जीरो है पॉलिनोमियल का जीरो तो x minus 2 क्या होगा उसका एक नेसेसरी फैक्टर होगा. सिमिलर वे में अगर √5/3 जो है वो इसका एक पॉलिनोमियल का जीरो है तो x माइनस √5/3 क्या होगा एक फैक्टर होगा. अब ये माइनस साइन के साथ है तो इसको आप ऐसे लेट कर सकते हैं कि x इक्वल्स टू माइनस √5/3. आप इसको x इक्वल्स टू पुट करके लिख लीजिए. फिर इस नंबर को आप ट्रांसपोज करेंगे तो यू विल गेट x प्लस √5/3 इक्वल्स टू 0. तो यानी कि क्या है ये दोनों इसके क्या हो जाएंगे फैक्टर क्योंकि दोनों इसके जीरोस हैं तो ये दोनों क्या है इसका फैक्टर्स आ जाए. Now let us divide this by the product of this. The whole dividend whole polynomial is divided by the product of the two factors only. That is x minus √5/3 or x plus √5/3. This is the identity a minus b and a plus b or a square minus b square. So x square under root of 5/3 whole square. It mean यहाँ exponent कितना 1/2 और पावर ऊपर स्क्वायर लगा तो m into n केस में पावर m into n होंगे तो 2 into 1/2 कैंसिल आउट हो जाएंगे 1 मिलेगा यानी केवल क्या बचने वाला है आपके पास x square minus 5/3. So our divisor become x square minus 5/3 and dividend is 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. First the degree of the divisor is 2 and degree of the dividend is +4. It means अभी डिवीजन जाएगा और कब तक जाएगा जब तक इसकी डिग्री जो होगी वो x स्क्वायर यानी कि 2 से लेस नहीं हो जाएगी.
वैसे भी ये कंप्लीट डिवीजन का फैक्टर है कि इसका फैक्टर है, तो इन क्वेश्चंस में रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा आपके पास। लेट्स से भाई एक्स स्क्वायर को हम क्या 3x टू द पावर 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, बिकॉज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज +1, हियर द कोएफिशिएंट ऑफ x 3x टू द पावर 4 इज +3। तो 3x स्क्वायर से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करें तो इट बिकम्स 3x टू द पावर 4 एंड 3 कैंसिल आउट। जब इनको मल्टीप्लाएंगे तो कांस्टेंट कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 न्यूमरेटर में 3x स्क्वायर है और -5/3 है, तो 3 कैंसिल आउट, -5x स्क्वायर। तो लाइक टर्म है तो लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे -5x स्क्वायर। नाउ सब्ट्रैक्ट किया हमने जैसे इसको, तो -3x स्क्वायर 3x टू द पावर 4 और +3x टू द पावर 4 कैंसिल आउट, और ये +5x स्क्वायर है और ये -2x स्क्वायर, तो ये प्लस के 3x स्क्वायर हमारे पास आने वाले हैं। लेकिन हमें क्या करना है, डिविडेंड जो होना चाहिए वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ हमने एक्स क्यूब को टच नहीं किया है, तो एक्स क्यूब को पहले लिखा जाएगा और ये 3x स्क्वायर को हम बाद में लिखेंगे। तो 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर -10x एंड -5 बचे हुए टर्म्स में हमने नोट डाउन कर लिया। फिर अब x स्क्वायर को 6x क्यूब बनाना है, तो फर्स्ट वी शुड मल्टीप्लाई बाय, साइन पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि कोएफिशिएंट दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है 6, और x स्क्वायर को x क्यूब बनाने के लिए हमें सिंपल एक x से मल्टीप्लाई करना है, तो x स्क्वायर should be multiplied by 6x. Second term of the quotient is 6x. 6x into x square, that is 6x cube, और plus 6x multiplied by -5/3, it gives minus sign, 5 2s are 10x. Subtract करने पे ये भी cancel out होगा, ये भी cancel out होगा, 3x square -5. Simply it should be multiplied by plus 3, so it has 3x square -5. Subtract किया -3x स्क्वायर एंड +5, तो कैंसिल आउट होके आंसर है 0। इन केसेस में क्योंकि ये आपको ऑलरेडी गिवन था, इज गिवन टू यू कि ये इसके फैक्टर्स है तो रिमाइंडर शुड बी 0। तो यहाँ लास्ट में आपको रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, 0। तो 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 5 कैन बी रिटन एंड इज द प्रोडक्ट ऑफ टू zeros which has given to you two factors, x plus √5/3 and x minus √5/3. Here it is written x square minus 5/3 and √5/3 whole square. And first one ये जो आपको दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इनको आप स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से सॉल्व कर लीजिए, या फर्स्ट टेक 3 एज अ कॉमन टर्म, तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विच इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x प्लस 1। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी एक 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फॉर पॉलिनोमियल हम जीरोस कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0, p of x इक्वल्स टू 0, therefore x square minus √5/3 whole square into 3x plus 3 and x plus 1 equals to 0। फर्स्ट फैक्टर जैसे ही हम 0 करेंगे तो हमारे पास दो आंसर्स आ जाएंगे, x square equals to √5/3 whole square which gives x equals to plus minus √5/3, and second को जब 0 करेंगे तो 3x plus 3 equals to 0, this gives x equals to -1, और x plus 1 equals to 0, again x equals to -1। Thus the other two zeros, आपसे ये क्वेश्चन में 4 zeros थे तो 2 zeros आपको दिए गए थे, तो other two zeros are of the polynomial are -1 and -1। Thank you।